the operand shift in the position of an object, the operand shift in the position of an object when observed from two different positions, then parallax is said to exist. Then parallax is said to exist if there is no shift, if there is no shift in the position of the object, then parallax is removed. Determine the distance of a star using parallax method. बहुत ध्यान से सुनना, टाइम बहुत कम है, आप नोट ना करना, जस्ट अंडरस्टैंड करना, बिकॉज इट इज बीइंग रिकॉर्डेड. ठीक है, जस्ट सी, दिस इज अ स्टार. इस स्टार का हमने डिस्टेंस मेजर करना है. हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं? अर्थ पे. तो ये हमारी, हाँ ये हमारी अर्थ है और ये जून 21 है. तो हमारे घर के पास एक टावर लगा हुआ है, उस टावर को हम सेक्सटेंट फोकस करते हैं. सेक्सटेंट क्या होता है? एक टेलीस्कोप होता है जिसके ऊपर डी लगी होती है. ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ फोकस करेंगे, फिर इस स्टार को फोकस करेंगे. तो ये एंगल बना θ1. फिर आफ्टर 6 months, दिस इज दिसंबर 21, तो वो टावर तो वही रहेगा ना, वो टावर तो कहीं शिफ्ट नहीं होने वाला. तो हम लोग, मैं थोड़ा स्टार्स को दूर दिखाता हूं. ठीक है, हेडलाइन तो डाल ही लिया आपने, क्योंकि मैंने अर्थ ज़्यादा बड़ा रेडियस दिखा दिया. तो ये स्टार है. अब इस स्टार की पोजीशन ये है और ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है n. ये रेफरेंस पॉइंट n रहेगा और ये एंगल सपोज θ2. ओके, ये वो स्टार है जिसका हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं. अब ये सन, तो इसको बोलेंगे 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो डायमीटर क्या बना? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. करेक्ट. अब ये है डिस्टेंस ऑफ स्टार से S. अब स्टूडेंट्स, ये जून 21 A, दिसंबर 21 B, तो ये θ1 θ2, तो दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2. तो टोटल ये बन गया φ. टोटल ये एंगल क्या बन गया? φ. तो φ क्या है? एंगल. दैट इज इक्वल टू आर्क AB अपॉन रेडियस. दैट is, so this is O, this is M, so that is OM. Well, OM is nearly equal to
AO nearly equal to BO, तो phi is equal to 2 astronomical unit upon that is AO या BO या OM, that is S. तो S is equal to 2 astronomical unit upon phi. तो astronomical unit का वैल्यू आपको पता है 1.018 10 raised to power I think 46 है. I am not sure, you can check it, या 16 what I am not sure. phi का एंगल आप सेक्सटेंट से नोट कर सकते हो. तो phi किसके इक्वल है? phi is equal to theta 1 plus theta 2. तो स्टूडेंट्स, knowing theta 1 theta 2 we can find the distance S, which is an approximate distance of star. This is approximate distance of star. And one thing more, very very important students, this is applicable only to those stars whose distance is not more than 100 light years away. If the distance of the star is more than 100 light years away, then angle theta 1 theta 2 is next to impossible to calculate. तो इसलिए this parallax method has a limitation that it is not applicable to those stars which are 100 light years away from the surface of the earth. अगर parallax remove हो जाता है तो theta 1 is nearly equal to theta 2 is nearly equal to theta. तो phi क्या हो जाएगा? 2 theta. So this is a very simplest method I have adopted to explain you the distance of the star. How's it? This doubt was of a student, Shreya. Is it clear, Shreya? Yes, sir. See, we are fortunate that UPS is being supported our system. So still, despite power failure, we are having a class, but it is beeping, so it may collapse anytime. Hope. Any doubts, students? No, sir. What is parallax? Parallax is the apparent shift removal in the position of the an object observed from the two distinct positions, from two distinct points. For example, you place pen, and if the pen is equidistant from IA and IB, by closing IA you note its position, by closing IA, opening by A and closing IB, then you note its position. You find that if there is no shift in the position of the pen, then we say parallax is removed. If there is a shifting in the position of the pen, then parallax is existing. So when parallax is removed here, when theta 1 is nearly equal to theta 2, that is theta. तो जून 21 को हम अपने घर की छत के ऊपर सेक्सटेंट, जो कि एक टेलीस्कोप विद डी, जैसे ये एक टेलीस्कोप है, ये एक टेलीस्कोप है, राइट? तो ये इस पे डी लगी होती है, इस तरह से डी स्केल लगी होती है, तो एंगल देता है ये थीटा 1. तो पहले तो आप किसी भी एक रेफरेंस पोजीशन को ले लो, कोई पहाड़ ले लो, कोई टावर ले लो, कोई मोबाइल वाला टावर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई पेड़ ले लो, जो भी आपके घर के पास है, उसको फोकस करो, उसको एन ले लो, फिर उस स्टार को फोकस करो जिसका डिस्टेंस हमने मेजर करना है, तो वो एंगल आया थीटा 1. अब आप 6 मंथ इस प्रैक्टिकल को नहीं करोगे, तो आप 6 मंथ बाद यहां आ गए, तो दिसंबर 21, फिर आप फोकस करो उस पोजीशन एन को और उस स्टार को से थीटा 2. तो सिंस दिस बी एन एंड ए एन आर पैरेलल, तो अगर आप, तो देन थीटा 1 इज दिस एंड थीटा 2 इज दिस, तो ये टोटल एंगल क्या बन गया? फाई.
तो फाई क्या है? एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू व्हाट? आर्क अपॉन रेडियस। ये प्रॉपर्टी हमने लगाई। तो जो 2AB है ये बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द स्टार, इसलिए हम इसको आर्क ले सकते हैं। मतलब 2AB कंपैरिजन में अगर 1 मिलीमीटर है तो OA या OM या OB कम से कम 1 लाख किलोमीटर है, 1 लाख किलोमीटर, 10 टू रेज़ पावर 5 किलोमीटर। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वो प्रॉपर्टी लगा दी। आपको पता स्टडी ऑफ कंपैरिजन में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कैन बी ट्रीटेड एज आर्क। आप बोलोगे सर 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस? यस, एज कंपेयर टू OB या OM या OA। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, डायग्राम में दिखने में लगता है कि OB इज ग्रेटर देन OM, बट बेसिकली दे आर नियरली सेम, क्योंकि स्टार का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस स्टार से हम अगर AB को देखेंगे तो ये बिल्कुल पास पास दिखाई देंगे। जैसे किसी हाइट से 2 गाड़ियों के बीच में कम से कम 100 मीटर का डिस्टेंस हो, लेकिन जब हम किसी पहाड़ की हाइट से देखते हैं तो वो गाड़ियाँ पास पास दिखती हैं। फॉलो? तो एंगल सबटेंडेड एट द आई इज़ वेरी स्मॉल। तो जितना एंगल स्मॉल बनेगा उतनी चीज़ पास पास दिखती है। आप घास को देखते हो हेलीकॉप्टर से या एयरक्राफ्ट से या हाइट से, बिल्डिंग से, तो वो एक कारपेट दिखता है, लेकिन जैसे ही आप ग्राउंड पे ग्रास को देखते हो तो वो आपको बिल्कुल एकदम साफ दिखता है, राइट?